I think one simple skills makes the difference between success and mediocrity. It's called the ability of learn quickly. Whether you are learning language, whether you are learning skills, whether you are learning any kind of subject, you already know it's important, but still your learning process is very slow. Every day you procrastinate and feeling overwhelmed. Have you ever think about this? Why so many people to learn and master the skills after a couple of months? Because we follow the right system to learn anything and 10x faster. And in this video, I'm going to show you 4 simple methods that help you to learn anything in 10x faster when without feeling tired and overwhelmed. So let's dive into the topic. Okay, so number 1 is micro learning. Have you ever think about this? Why so many people to learn and master the skills in after a couple of months, but so many people stuck in the cycle and after span a lot of year not master the skills. You don't need to spend a lot of time to learn anything. You want to just take a right step. सो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो माइक्रो लर्निंग एक ऐसी मेथड है जिसमें आप अपने बिग टास्क को कैसे ईजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। इसे हम माइक्रो लर्निंग बोलते हैं। लेट्स से मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो इंस्टेड ऑफ स्पेंड 1 hours to 2 hours इन एवरी सिंगल डे, आई स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, like what is the transition, what is the color correction, how to trim the audio, how to trim the videos, and how to add the text of in videos, and the small things. Every like I started the basics of video editing and I learned a 13 to 40 minute in every single day to learn a video editing. Okay, so number 1 is to use the Pomodoro technique. Pomodoro technique is one of the famous method that help you to focus on your work and focus on your task. You want to set a timer in 25 minutes, and in 25 minutes you want to focus on your work and task without distractions. And after completed 25 minutes, you want to take a 5-minute break. And in this scenario, repeat in 3 to 4 times. Number second method is use 2 mini tools. जब भी आप अपना काम कर रहे हो, अगर आपको टायर्ड या ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, तब आपको ये मेथड यूज करनी है। आपको क्या करना है कि जब भी आप टायर्ड या ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो, तब आपको अपने आप से ये बोलना है कि जस्ट 2 minute ब्रेक। आई जस्ट टेक अ 2 minute break. Then I focusing on my task. Okay, so number second method is level up your inner identity. Remember, if your mind says you can't do it, you are right. But if your mind says you can do it, you are absolutely right. Because whatever you think will happen to you. सपोज आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, आप उसकी डेली प्रैक्टिस तो कर रहे हो, आप उसे मास्टर तो कर रहे हो, बट आपके माइंड में एक डाउट है कि क्या मैं इस लैंग्वेज को सीख रहा हूँ, मैं डेली प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, मैं डेली बोलने की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट स्टिल क्या मैं वो लैंग्वेज सीख रहा हूँ। आप अपने माइंड में एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर रहे हो कि आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख पा रहे हैं। इसीलिए थिंक पॉजिटिव, एंड वेन एवर यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, योर माइंड फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली। नंबर थर्ड इज क्रिएट अ लर्निंग सिस्टम। लेट्स से आप एक लाइब्रेरी हो, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई बुक्स रीड कर रहा है, कोई अपने एग्जाम्स की तैयारी है, बट वहाँ पे आप ही एक ऐसे हो जो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, बिकॉज वहाँ पे सिस्टम ऐसा बिल्ड किया हुआ है कि आप अपने काम पे फोकस करो, ना कि स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन सोशल मीडिया। सो अगर आप अपना काम कर रहे हो, बट आपके सराउंडिंग में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है, so you can never focus on your work and task. And number fourth method is use the Feynman technique. If you want to learn and master any topic, no matter without complex this, so you can use the Feynman technique. Feynman technique inspired by Nobel Prize winning Richard Feynman. Feynman technique एक 4-step प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो विदाउट मेमोराइज इट। ओके, सो नंबर 1 इज चूज द टॉपिक। सो सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक चूज कर लेना है जिस भी बारे में आपको सीखना है। लेट सपोज मैं चूज करूंगा फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। सो आपके पास एक टॉपिक है हाउ टू लर्न फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। अब आपको क्या करना है, आपको उसे ऐसे समझाना है कि आप किसी को समझा रहे हो। उस टॉपिक लर्न दिस फाइनेंस टॉपिक को आप किसी को समझा रहे हो, लाइक किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी इन फ्रंट ऑफ पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे हो। कैसे करना है, लाइक आपको उसे समझाना है कि व्हाट इज द फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, what is the stock, what is the cryptocurrency, what is like gold, how to start investing। वो आपको सारे टॉपिक आप उसको समझाना है। देन नंबर थर्ड स्टेप इज फाइंड द गैप्स। ओके, सो आपने कंप्लीटली उसको अंडरस्टैंड कर लिया है व्हाट इज द फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। देन अब आपको करना है कि आपको डिफिकल्टीज फाइंड करनी है। जो भी टॉपिक को आपको समझाने में डिफिकल्टी हो उसको आपको अपने बुक्स में राइट डाउन कर लेना है और इस टॉपिक को वापस रिपीट करना है। इस टॉपिक को आपको रिव्यू करना है, उस टॉपिक को आपको
रिवाइज करना है और वापस एक्सप्लेन करना है उस वे में जिस वे में आपको इन फ्रंट ऑफ पर्सन को समझाया था। सो नंबर 4 इज सिंप्लीफाई। अब आपको क्या करना है, आपने उस टॉपिक को मास्टर तो कर लिया, बट अब आपको ये सोचना है कि कैसे मैं उस टॉपिक को सिंपल वे में कर सकूं, कैसे मैं इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकूं, कैसे लाइक व्हाट इज जहाँ पे मेरी डिफिकल्टीज आई है कैसे मैं उस डिफिकल्टी को रिसोल्व कर सकूं। ओके, सो ये थे हमारे 4 स्टेप जिसमें आप किसी भी टॉपिक को मास्टर कर सकते हो without feeling tired and without feeling overwhelmed. So I hope you understand the videos. And in my channel, I create a self-improvement related videos. I create a finance related videos. So don't forget to like and subscribe. So I will meet you in the next video. Thank you.